तो मैं आपको ना एक एक्सरसाइज देना चाहता हूं। तो एक्सरसाइज कर लें तो आपको थोड़ा समझ में ज्यादा आ जाएगा, मेरे ख्याल बेटर रहेगा। डॉक्यूमेंट तो करीब करीब सारे यही हैं जो मैंने बताया आपको। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वगैरह भी है मेरे पास में, आपको मैं भेज दूंगा मोटा मोटा, जिस व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, है ना, आज ही भेज दूंगा। आज मैं शाम को सारे डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, दिखा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं अगर ऑनलाइन आपको मैं एक वीडियो ही चला दूं उसकी, अगर चल गई ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। फिर मैं छोटे छोटे ग्रुप बनाऊंगा, फिर आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा, आप आपस में डिस्कस करना, उसका सोल्यूशन ढूंढना, और ग्रुप में से एक कोई भी व्यक्ति अपनी बात बता दे कि हमने मिलकर ये डिसाइड किया। इज दैट ओके? है ना, जैसे आप लोग 4 का बन गया, आपका 4 का हो, 4 लोगों का ग्रुप बन जाएंगे, राइट? तो मैं आपको एक वीडियो चलाता हूं जिसके अंदर एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है, आपको उसका सोल्यूशन बताना है। Hello friends, so in today's episode I will discuss about a very interesting story which is a real story, although I will not divulge the exact names of the players involved in this story, but the story is real. So friends, this story relates to one company, Malhotra Exports, based in Mumbai, which were into the exports business, exporting high fashion ready-made garments, and they entered into a export contract for supplying fashion garments to a fashion garment importer in France, the Saint Laurent company of Paris, and they supplied the goods few years back against an agreement between the importer and the exporter for the supply of the fashion garments against the international payment system through banks, wherein the Indian bank and a French bank was involved, and the payment was on DA basis. DA means documents against acceptance, and the acceptance period was 60 days, and the value of the contract was approximately 55,000 euro. So the Indian Bank of Malhotra Exports, which was the International Bank of India, and the Credit Lyonnais, the French bank of the importer, they were the bankers in this DA payment contract. And after the shipment was made by Malhotra Exports from Mumbai by sea of the fashion garments to the French company, they submitted all the documents as per the contract, including invoice, certificate of origin, insurance certificate, and freight certificate, and very importantly, bill of exchange. In the bill of exchange, the company, Indian company, Malhotra Exports, very clearly mentioned that the documents, including the bill of lading, transport document, are to be released to the party against the co-acceptance of the French bank. The meaning of which is that in any eventuality, the French bank, if he co-accepts this DA terms as per the bill of exchange, the payment will be made by and guaranteed by the French bank. So these documents were submitted to the Indian bank by Malhotra Exports, and in a very routine manner, the Indian bank forwarded these shipment documents to the French bank, that is Credit Lyonnais, which further handed over these documents to the Saint Laurent company of France against acceptance of 60 days.
So after 60 days were passed, the money did not come through to the Indian company, that is Malhotra Exports, and they contacted their Indian counterpart, Indian bank. The Indian bank sent a communication to the French bank about the payment, and the French bank replied that the Saint Laurent Company of France is already bankrupt, and in this case they are unable to pay. And this reply was conveyed to Malhotra Exports by the Indian bank. In this case, the Indian company contacted the bank and said that as per the bill of exchange, the documents had to be released only against the co-acceptance of the French bank. And since the company, that is the importer, is bankrupt, so money has to be paid by the French bank. The same was conveyed to the French bank by the Indian bank, the appeal of the Indian company for the payment. The French bank replied their inability to pay in the absence of any clear instructions by the Indian bank about the co-acceptance condition for releasing the documents to the French party. And indeed, the Indian bank had not given any explicit instructions for the collection of the documents as per UCP 522 about the co-acceptance clause. So in this case, the Malhotra Exports approached the National Consumer Forum in Delhi with the plea that the Indian bank failed to instruct, in spite of the condition given in the bill of exchange, about the co-acceptance clause by the French bank. The National Consumer Forum in Delhi ruled in favor of the Indian company, that is Malhotra Exports, and ruled that the services of the Indian bank was indeed deficient, and Indian bank is liable to pay 55,000 euro plus 15% interest till date to Malhotra Exports. So after this ruling, the Indian bank approached with the appeal to the Supreme Court, and as per the ruling of the Supreme Court, after hearing both the parties, Supreme Court ruled that the Indian bank as well as the French bank is not liable to pay any compensation to the Indian company, that is Malhotra Exports, because of the lack of any explicit instruction given by the Indian company to their Indian bank, that is International Bank of India, about the co-acceptance clause. And further it ruled that there was no supporting underlying agreement or contract between the exporter, that is the Malhotra Exports, and the bankrupt importer, that is Saint Laurent of France, indicating any co-acceptance clause. And neither there was any agreement between the exporter and the French bank to that effect. So in the absence of these documents, underlying documents, and the fact that there was no explicit instruction by the Indian exporter to the Indian bank, it is very, very clear that banks are not liable to go into the commercial documents submitted for the shipment, and they are only liable to follow the instructions given explicitly by the clients, clearly indicating about the instructions for the collection of the documents. And the same plea which was given by the French bank applied to the Indian bank also. So the overall result, friends, was that the Indian company lost money, they lost reputation, and they lost the business. अच्छा, अब आपको इसमें कोई जो इस प्रॉब्लम समझ में इसमें बताई गई है, कोई डाउट है? हाँ, beginning में as soon as the shipment was departed, right? The bank documents submitted by the exporter from the India. हाँ, बिल ऑफ lading मिल गया, बिल ऑफ lading मिल गया ना? That is a different issue. But what were the instructions in the DA? Because DA. हाँ, डीए में उसने बैंक को जो डॉक्यूमेंट दिए,
साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज भी लगाया। बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिखा, क्योंकि ये डीए पेमेंट है, डीए का मतलब ये है कि जो इंडियन बैंक है वो क्रेडिट लोनेस को भेजेगा, वो क्रेडिट लोनेस जो है वो बायर को देगा। हाँ, इसने एक कंडीशन डाली कि जो क्रेडिट लोनेस है अगर वो को एक्सेप्ट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी रिलीज करें, अदरवाइज ना करें। That was a deficiency pointed out by the Supreme Court too, ना? हाँ, नहीं, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, इसमें अभी भी एक सोल्यूशन नहीं है ये, मैं बता रहा हूं, क्योंकि कंज्यूमर फोरम भी मजिस्ट्रेट ही तो होते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी मजिस्ट्रेट होते हैं, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, इसका मतलब सोल्यूशन तो निकला ही नहीं। कोएक्सेप्टेंस क्लॉज क्या होता है? कोएक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, क्योंकि बैंक कलेक्शन पे जा रहा है तो बैंक में चौधरी तो है ही नहीं, वो बैंक, वो तो सिर्फ एक तरह से पोस्ट ऑफिस है, वो तो मतलब डॉक्यूमेंट कलेक्शन पे जा रहे हैं ना, तो उसमें क्योंकि रिस्क है, जैसे आपने देखा कल शनाइल दरी में लिखा हुआ था डीए अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने लिखा था डीए अलाउड नहीं है, डीपी अलाउड है। डीपी में क्या होगा, डॉक्यूमेंट मिलेंगे तब जो पेमेंट मिलेगी। अब डीए में क्या होता है, डीए में बैंक लेटर ले लेता है कि भाई हम पे करेंगे, लेटर ले लिया, अब कंपनी करेगी भी, पर कंपनी जब बंदी हो गई, एग्रीड, इंसॉल्वेंट हो गई, तो उससे बचने के लिए मल्होत्रा एक्सपोर्ट ने उसमें एक कंडीशन डाल दी कि आप रिलीज तब करो जब आप उसको को एक्सेप्ट करो, यानी कि अगर बायर नहीं देगा तो बैंक देगा, चार्ज ले लो। उसने अपनी तरफ से गलत नहीं किया, अपनी तरफ से गलत थोड़ी किया, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज में लिख दिया, पर वो बैंक ये कहता है जी डॉक्यूमेंट में लिखा है बहुत अच्छी बात है, पर जो आपने मुझे अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं दी, इंस्ट्रक्शन और कैसे देता है? कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर जो दिया था आपने उसमें क्यों नहीं लिखा, हम सारे डॉक्यूमेंट थोड़ी अंदर घुसेंगे डॉक्यूमेंट्स में, वो ये कहते हैं। ये कॉन्फ्लिक्टिंग है ना जो है। नहीं, यूसीपी में भी लिखा हुआ है, ये यूसीपी में जो धार्मिक किताब है उनकी, उसमें भी लिखा हुआ है कि बैंक इज नॉट लायबल टू रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उसको इंस्ट्रक्शन क्लियर होनी चाहिए, लिखा है, लिखा है। कोरियर कराने जाओ, हाँ। they are not liable more than 10 rupees or 100 rupees. हाँ। Whatever the goods value is. हाँ हाँ, नहीं पर यहाँ तो बैंक है ना। same वही है ना। हाँ। बचाने के लिए धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है। सबने अपनी हाँ, जो उनका यूसीपी 522 क्लॉज है उसमें लिखा है कि बैंक इज नॉट लायबल फॉर व्हाट इज गिवन इन द डॉक्यूमेंट्स। अब इनकी प्रॉब्लम ये थी कि बिल ऑफ एक्सचेंज तो बैंक के डॉक्यूमेंट होता है, तो कम से कम वो तो पढ़ना ही चाहिए, वैसे कायदे से देखा जाए तो भाई कम से कम अपना अपना डॉक्यूमेंट तो पढ़ो। चलो कवरिंग लेटर में नहीं लिखा हुआ था, तो अब उन्होंने तो कह दिया। अब इंडियन बैंक वाला कहता है जी आपने कौन से कवरिंग लेटर में लिख दिया था मुझे, मेरे को अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं। हाँ मुझे इंस्ट्रक्शन अलग से देते, राइट। ये कोरियर देने जा रहा है, घर पे किसी और को नहीं देना, सेम इसी बंदे को देना। हाँ हाँ हाँ, कि भाई क्या है कि रजिस्टर्ड आईडी होनी चाहिए, आईडी लेके उसको देना। हाँ। रजिस्टर्ड आईडी होनी चाहिए। उसकी बचाने वाली बात होगी कि मैं निकल गया, ये आप देखो। अच्छा, एक पॉइंट और ऐड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कि भाई आपका कोई एग्रीमेंट हुआ था उस बैंक के साथ कि कोई एक्सेप्टेंस क्लॉज वाला कंडीशन होगा, कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं मल्होत्रा एक्सपोर्ट का, तो आप तो ये नई कंडीशन डाल रहे हो ना। हाँ, तो मतलब कहने का ये है कि मेरा पर्पज ये था कि हम आपस में आप ये डिस्कस करके ये थोड़ा मैं आपसे, या ऐसे ही बता दीजिए, चलो थोड़ा टाइम भी बचेगा अपना, आप अपने पॉइंट्स बताइए कि इसके अंदर किस तरह, क्या मल्होत्रा एक्सपोर्ट को क्या करना चाहिए था कि ये प्रॉब्लम ना आती, क्या उसको पास सॉल्यूशन क्या था उसने डे वन से, और ऐसा किया तो क्यों किया होगा उसने जो ये सब किया है, और अगर सही तरीके से करता तो कैसे करना चाहिए था, आपको क्या लगता है आप? तो जो कोई ECGC वाला था, इंश्योरेंस, हाँ, सबसे पहले तो ECGC में आना चाहिए था उसको, सबसे पहले तो उसको ECGC में आना चाहिए था। अगर उसे पता था कि पार्टी खराब गलत है, नहीं गलत पार्टी गलत नहीं थी, पार्टी डूब गई, बैंकरप्ट हो गई। हाँ इंश्योरेंस से भी पहले जब बायर से डिटेल्स मांग लेते लास्ट 3 इयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना था। हाँ लास्ट कंडीशन क्या है 3 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कराएगा ना, जब उसे लगेगा कि ये पार्टी डूबीएस है कि हाँ, डूब जाएगी। हाँ, हाँ, हाँ। डूबीएस पार्टी उसको लगती, हाँ। तभी इंश्योरेंस कराएगा, तो क्यों प्रीमियम पे करेगा, वो अपने प्रॉफिट से ही दे रहा है ना। हाँ 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 लास्ट सही है। 3 इयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकलवा देते हैं, हाँ हाँ, उससे स्टडी कर लेते हैं नहीं वो एक्चुअली में
पार्टी बैंकरप्ट जब होती है तो कोई जरूरी नहीं है कि पहले की रिकॉर्ड खराब हो, कोई जरूरी नहीं है। बैंकरप्ट तो कभी भी हो सकती है कि भाई कोई कंडीशन, अब पेंडेमिक आया, कितनी कंपनियां डूब गई। नहीं, इधर उल्टा देख लो, मल्होत्रा जी भी तो रातों रात खत्म हो गए। ये कंसाइनमेंट करते लगी, चला गया। हाँ, अगर उन्होंने इसी किसी का वो इंश्योरेंस ट्रांजिट वाली लाइन चली, इसी वाली पे आ गया, इसी के साथ होता तो बच गया। और इसके अलावा और क्या कर सकते थे? मतलब एक तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि इसी कवर ले लेते, और क्या कर सकते थे? एलसी, अच्छा अगर एलसी ओपन करते, उन्होंने एलसी पे काम क्यों नहीं किया हुआ? क्या रीजन हो सकता है? स्टार्टिंग में आपने बताया कि उन्होंने ये कहा था कि बैंक के पास स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी कि बैंक जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज तब रिलीज करेगा जब वहाँ पे को एक्सेप्टेंस, को एक्सेप्टेंस। पर वो तो लेकिन उन्होंने वहाँ पे वो रिलीज कर दिया, उन्होंने भी जब उसको रिलीज कर दिया तो उधर वाले बैंक ने भी तो उसको वो रिलीज कर दिया ना उस चीज को। नहीं, मेरा पॉइंट ये है, अंदर पढ़ा नहीं, डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा हो, हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा, हम तो एज इट इज दिया। हम बैंक के साथ नहीं किया ना उन्होंने, तो पार्टी में बैंक ट्रैक में नहीं जाएगा, बैंक सब कुछ नहीं पड़ेगा, वो तो कहते क्लोज कैसे पड़ेगा। आपको यहाँ डॉक्यूमेंट आप कोरियर कराओ, ब्लू डार्ट को दो, आप 3000 रुपए का कोरियर दो, कोरियर मिस हो जाए तो ब्लू डार्ट को कंपनसेशन क्या देता? 100 रुपए। नहीं, मैं एक वैसे पॉइंट पूछूं आपसे, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। अगर आप बैंक को लायबल लगाते हो बीच में तो बैंक को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होना कि आप लायबल हो इस चीज के लिए। बैंक को बोल नहीं बोलते कि कुछ होगा तो नहीं क्या चीज ये है कि उसमें लिखा हुआ है ना जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है बैंक ने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं। लीगली बाउंड नहीं है ना वो पढ़ने के लिए वो डॉक्यूमेंट, साइन करे बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव वगैरह है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पूछना चाहिए था इंस्टेड ऑफ बैंक। नहीं, डायरेक्ट नहीं भेज सकता, जाएगा बैंक में, नेगोशिएटिंग बैंक ही बिल लेके जाएगा उनके थ्रू ही। ये तो कंडीशन है ना, डायरेक्ट नहीं भेज सकते आप। कोई भी इश्यूइंग बैंक आपसे डायरेक्ट डील नहीं करेगा क्योंकि उनका अपनी लैंग्वेज होती है आपस में। नहीं, मेरा पॉइंट इसमें एक अब वो दोबारा कलेक्ट करने में मेरे 1000 रुपए लगेंगे, उसकी मैं क्या वैल्यू लगाऊं? जो आप अंदर क्या है मेरे को तो मेरे केयू के भी थे, मेरे दिवाली के भी थे, ये मैंने या आप ऐसे करो, आप एक थोड़ा डिस्कस करो, इसके पॉइंट्स अभी बहुत सारे हैं अभी जिसमें अभी भी मिसिंग है। वो क्या है? निचले लेवल पे कभी कोरियर वाले बात पे होती है, जब कहते हैं कि जो आपकी बिल अमाउंट है उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। मेरा जनरल ये आंसर था कि मैंने एक सर्टिफिकेट भेज लिया, मैं बॉम्बे भेज रहा हूँ, अब इसकी तो कोई कमर्शियल वैल्यू है नहीं, अब ये मिसप्लेस हो जाते हैं। अब इसमें तो बैंक वो कोरियर कही कहता है कि आप 100 रुपए ले लो, तो कॉम्पनसेशन आपकी, लेकिन वो कलेक्ट करने के लिए मेरे को भिवानी भी जाना होगा, केयू भी जाना होगा, इसमें मेरे थोड़ा 1000 रुपए लगेंगे ना दोबारा उनकी डुप्लीकेट कॉपीज लेने के लिए। अब केयू जाऊंगा तो कहेगा जी आप पहले 3 न्यूज़पेपर में निकलाओ, ये गुम हो गए, वो भी करवा के लाओ, फिर उसके इतने दिन बाद ये चीजों के पैसे थोड़ी मेरे को इंश्योरेंस को देगा, आपका कोरियर कंपनी देगी, वो तो कहेगी 100 रुपए ले लो जी, मैं हाँ। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो मैंने बात है कि इसमें क्वेश्चंस कुछ उठते हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आपस में आप डिस्कस करके इसका सोल्यूशन निकालो। पहली बात, मल्होत्रा एक्सपोर्ट एस्टेब्लिश एक्सपोर्टर है, वो पहली बार तो ऐसे काम नहीं कर रहा होगा, उसने कवरिंग लेटर में क्यों नहीं लिखा? कोई ना कोई रीजन होगा। क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो। नंबर 1 कि उसने कवरिंग लेटर में क्लियरली क्यों नहीं लिखा, नंबर 1। नंबर 2, जो बैंक, जो फ्रेंच बैंक है, उसने ये कैसे मान लिया कि वो को एक्सेप्टेंस क्लॉज देगा बिना किसी, उसने कोई पहले एग्रीमेंट तो नहीं किया उस बैंक से कि भाई को एक्सेप्टेंस का तो मतलब ये है कि वो तो चार्ज भी लेगा अपने। आप तो ये भी लिख सकते हो जी, अगर वो हाथी में बैठ के आएगा तभी आप उसको डॉक्यूमेंट देना। अब वो फ्रांस में हाथी ढूंढने कहाँ आएगा वो बायर? मतलब मैं ये कुछ मेरे क्वेश्चन उठते हैं। तो आप ऐसे और 3-4 बातें हैं इसमें जो वीक पॉइंट हैं। मैं चाह रहा था कि आप आपस में डिस्कस करके उसका सोचो कि और क्या पॉइंट्स हैं इसमें, इस वाली केस स्टडी में। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन ये बताया कि पहली बात तो लिखा ही क्यों नहीं, बाई मिस्टेक लग रहा है आपको या जानबूझ के नहीं लिखा? क्यों? अब क्यों? अगर डेलिब्रेट है तो क्यों? हाँ हाँ हाँ, लूप होल, वही मैं पूछ रहा हूँ।
नहीं, आप एक बार सोचो, मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, सोचो, इसमें पॉइंट्स हैं अभी भी, इस वाले केस में भी पॉइंट्स हैं। पहले डीलिंग करनी है ये ये हो सकता अज्यूम कर सकते हैं ना, क्लैरिटी तो किसी चीज़ की, क्लैरिटी तो कुछ भी नहीं अज्यूम कर सकते हैं, ये होगा वो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं। पर एक लॉजिकल, मतलब एक बिजनेस एंगल से कि भाई इतना बड़ा अमाउंट है, उसने ऐसी मिस्टेक करी तो क्यों करी, ये लैक ऑफ नॉलेज होगी, क्या रीजन हो सकते हैं? नॉलेज नहीं होगी, कुछ हो सकता है, या स्किप हो जाता है कि बस। हाँ, नहीं कई भाई $55,000 वैसे कम तो नहीं होते, मतलब एक गारमेंट एक्सपोर्टर के लिए। ये बाय द वे रियल एस्टेट स्टडी है ये, इसका पार्टी का नाम कुछ और है, मैंने लिखा नहीं क्योंकि अननेसली प्राइवेट मैटर है। बैंक रिलीजन के लापता हो गया सर इसमें, है बैंक रिलीजन के लापता हो गया, बैंक जो उधर है ना बैंकिंग का वो, हाँ। इसमें नजर आया फिर कहीं लेन देन में बीच में जो कुरान वगैरह का आप बता रहे थे। हाँ, नहीं वो तो क्लियर किया उन्होंने कि यूसीपी 500 में जो 522 क्लॉज है, 522 उसमें ये लिखा है, उसमें लिखा है कि बैंक के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट सारे पढ़े ढंग से, ये बैंक का काम नहीं है। बैंक से अगर कोई काम कराना है आपको, तो बैंक को आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा जी ये आपका रोल है इसमें, उसके लिए तो वो डॉक्यूमेंट है। फिर उसकी जरूरत क्या है लगाने की, जब उसको मान ले पढ़ने की उसने खुद ही पढ़ना, उसको रिक्वायरमेंट भी होती है। उसे लाइब्रेरी नहीं है, पढ़ने तो बताना पड़ेगा अलग से। नहीं, देखो वो ये देखेगा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये बिल ऑफ लीडिंग है, वो सही है कि नहीं है। अब कहीं पे किसी डॉक्यूमेंट में बैंक के लिए कोई इंस्ट्रक्शन हो, भाई मतलब यूसीपी कहती है कि आप कहीं पे कुछ लिख दोगे बैंक के लिए कंडीशन, अब वो बैंक को दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती, बैंक का काम और लायबिलिटी नहीं है वो बैंक का लायबिलिटी नहीं है। अगर आपने डॉक्यूमेंट में कहीं लिख दिया है कि जी कोई एक्सेप्टेंस होगा तभी आप रिलीज करना। आप देखिए, एक और बात है, आप मोटा मोटा भी देखिए, जो मेरे समझ में आती बात, आप किसी बच्चे को बोलोगे बेटा बराबर के गांव में चौधरी साहब हैं, उनको पैसे दे के आ जाओ, आप क्या बोलोगे? बेटा देख घर में चौधरी साहब की कोई बहू हो या कोई हो, वो बोले जी आप हमें दे दो, तो पेमेंट मत देना। आप समझाओगे ना उसको कि भाई चौधरी जी मिले उन्हीं को पेमेंट करना, नहीं तो वापस आ जाइए तू। ऐसा है, ये नहीं कि चौधरी जी की बहू कह रही है जी कोई बात नहीं जी, चौधरी जी तो दूसरे गांव गए हैं शादी में, आप हम ही दे जाओ। अब बहू के साथ कैसे रिलेशन है, वो नहीं है, वो पैसे दे नहीं दे ससुर को अपने, है ना, मैं तो मर गया, तो तुम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे, कैसे दोगे? समझा के बिठाओगे उसको, कोई कागज लिखवाओगे, बेटा देख ये कागज है ना। अब हो सकता है उनको लेटर दिया हो चौधरी जी के लिए कि जी चौधरी जी ये पेमेंट भेज रहा हूं मैं, पर अगर आप मिलोगे तभी मिलेगी आपको। अब वो जरूरी थोड़ी कि वो लेटर खोल के देखेगा जो पैसे लेके जा रहा है ना। तो मतलब मेरे को तो बात समझ में आती है, तो और लिखा भी हुआ है 522 में कि भाई अगर डॉक्यूमेंट के अंदर, अब एक मोटी मोटी बात याद है, बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ अब आप अपनी सर्विसेज ले लो। हाँ, अगर मैं आप मोबाइल की बात करूँ ना, हाँ। BSNL का मोबाइल आप यूज करते हो, BSNL ने आप चाहे प्रीपेड है या पोस्टपेड है, पोस्टपेड में उसने बिल ले लिया कि भाई साहब 1 महीने का 100 रुपए का बिल है, प्रीपेड है 100 रुपए का रिचार्ज है, 1 महीना चलेगा, 15 दिन सर्विसेज बंद रहती हैं। तो आप उनके पास जाओ, भाई मैंने 15 दिन स्टार्ट कर दो, वो कहते हैं ये नहीं, एज एंड व्हेन अवेलेबल सर्विस। अच्छा, उनकी कंडीशन है ये तो बंद होगी। अब बिल की बारी आती है, वो कहते हैं कि आपकी 3 मार्च अवेलेबल है, 3 मार्च तक आपने देना, 3 के बाद दोगे तो आप ये 100 रुपए इसमें जमा दोगे। अब वहाँ मेरी बात क्यों नहीं आ जाती कि सर अगर आपके पास पैसे होंगे तो दे देना, नहीं होते जब अवेलेबल होंगे तब दे देना।
दोनों चीजों को समझ चलो ना, वो उसमें तो अपनी सेफ साइड ले ली, कंज्यूमर बढ़ता रहे। नहीं, पर बात ये आती है ना जी, ये जो भी पैसे लेने हैं, अब आपकी सर्विसेज बंद थी, टेक्निकल फॉल्ट आ गया, कुछ आ गया, अब इसके बाद तो नेशनल क्रंच आ सकता है, भैया मैं हफ्ते बाद दे दूंगा, ये ऊपर पैसे ना। देखिए, एक बात तो सच्ची है कि जो फ्रेंच बैंक है उसने इस बात का फायदा उठाया कि 522 में लिखा हुआ है और इनको आम आदमी को पता नहीं होता, कोई यूसीबी पढ़ता नहीं है, बस कोई एक्सपोर्टर यूसीबी थोड़ी पड़ेगा, वो तो बैंकर ही पड़ेगा। और देखा जाए तो जो इंडियन बैंक है वो भी तो पैसे ले रहा था नेगोशिएटिंग, उसको बताना चाहिए था कि भाई आपने ये कंडीशन डाली हुई है, वो भी बैंक डॉक्यूमेंट में, तो भाई मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शन दो, मैं उनको बताऊंगा। कोर्ट तो है, लोग कोर्ट में जाते हैं ना। नहीं, कोर्ट में इसमें तो गए ना, कोर्ट में, इसमें पहले वाले कोर्ट ने तो कह दिया जी मल्होत्रा एक्सपोर्ट जी बिल्कुल सही है आप, और सुप्रीम कोर्ट ने कहता जी आप बिल्कुल गलत हो। अब देखिए ना, बड़ी अजीब सी बात है ना। सर पर बैंक है ही जब ऑफिशियल, और बैंक समझ आता है कि सेफ सिक्योर है, ऑफिशियल है, कि अपना काम सही से करेगा, सही से करेगा। डॉक्यूमेंट सारे, अगर जनरली हम भी कोई पॉलिसी साइन करते हैं, हम भी सारी चीज़ नहीं करते, ऐसे साइन करते हैं, लेकिन जब कुछ क्लेम करना चाहो तब वो हमें कुछ ऑफिशियल पॉइंट्स बताते हैं कि ये देखो इसमें आपने साइन किया था, इसीलिए जब हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करते हैं तो ये उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो रीड करें, तो ये रूल मुझे, और स्पेशली जो बैंक डॉक्यूमेंट है, हाँ जी, बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपका चेक की तरह ड्राफ्ट है ना, तो उसमें तो उसको तो पढ़ना ही चाहिए कम से कम। वो तो इस बात का फायदा उठा लिया फ्रेंच बैंक ने, और जब सारा काम करने के बाद कहता जी मैं तो नहीं देता पेमेंट, क्योंकि ये 522 में लिखा हुआ है, ये हमारा काम नहीं है पढ़ना। यही हुआ ना, वो तो अपनी जगह सही है। नहीं, वैसे एक बात बताऊं, अब ये धार्मिक किताब जो 522 है, ये भी कोई लीगल तो है नहीं, इंटरनेशनल तो कोई लीगल हुआ ही नहीं कुछ। अगर ये कोर्ट में जाता केस, तो फ्रेंच बैंक अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जाता तो हो सकता है फ्रेंच कोर्ट को पैसे देने पड़ते। देखा जाए तो इसमें असली जो करतूत करी है वो फ्रेंच बैंक ने करी है, देखा जाए तो, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज देखा जाए तो इंडियन बैंक के लिए नहीं है, वो फ्रेंच बैंक के लिए है, और बैंक का उसका खुद का डॉक्यूमेंट है, पेमेंट उनके थ्रू आनी है, और सबसे ज्यादा पैसा भी वही कमा रहा है, क्योंकि वो असली नेगोशिएटिंग बैंक तो वो है जो उससे नेगोशिएट कर रहा है बायर को। बिल ऑफ एक्सचेंज ये वाला बैंक दे रहा हमारे वाला, तो इसकी ड्यूटी नहीं, यहाँ भी बनती है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमारे वाला बैंक है ना, ये हमने बना के दिया था, उसको हमने साइन करके दिया था ना। उसको सेंड करता है ना, हाँ, आगे जो साइन कर रहा है उसको ये बताना चाहिए था, यानी कि इंडियन बैंक को भी शायद यूसीबी की पूरी नॉलेज नहीं थी, उसको भी पता होना चाहिए था कि उनका क्लाइंट गलती कर रहा है, उसने अलग से इंस्ट्रक्शन लिखी है जो लिखनी चाहिए, है ना। तो वो तो रोजा काम करने वाले हैं, उनसे तो उनकी मिस्टेक तो है, इसीलिए उनको कंज्यूमर कोर्ट ने बोला भी पेमेंट आप करो। कंज्यूमर कोर्ट गलत नहीं था अपनी जगह से, सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक गलत था इन द सेंस कि वो बैंक डॉक्यूमेंट था, और अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जाता तो चांसेस 90% चांसेस थे कि फ्रेंच बैंक को या इंडियन बैंक को पैसा देना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे बड़ा पॉइंट जो बोला ना, वो थोड़ा सा दूसरे एंगल में चला गया, क्योंकि जो बैंक होते हैं ना, वो उसको यूसीबी से मतलब नहीं है, सॉरी, कोर्ट को यूसीबी से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी धर्म की किताब में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट में, नहीं, वो भी और सुप्रीम कोर्ट अपने लॉजिक पे चलता है, लीगल लॉ, जैसे मैंने बोला एफएएस और एफओबी में कोई फर्क नहीं है कोर्ट के लिए, उसको कोई क्या फर्क पड़ा कि आपने लोडिंग करी या नहीं करी। ये भी डिपेंड करता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, जो प्लांट है, हाँ, प्लांट के अंदर ये चीज की है, उसके ऊपर डिस्कस हुई है, फिर तो ठीक है, यदि प्लांट में नहीं है और उसके ऊपर डिस्कस हो रही है तो कोर्ट नहीं मानेगी उस चीज को। हाँ हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा एंगल डाला इसमें। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी रिसेंट लाइसेंस इंटरनेशनल कराने के लिए दिया, अच्छा, उनसे पूछा कि क्या क्या चाहिए, वो कहते हैं आपकी वीजा की कॉपी चाहिए, कराना चाहिए, जो आपका लाइसेंस है उसकी फोटोकॉपी, प्लस एक रेड क्रॉस की फीस है, उसके बाद एक टेस्ट होगा। ठीक है, वो सारा कुछ दे दिया, ड्राइविंग टेस्ट भी हुआ दोबारा, 10 क्वेश्चन थे, मेरे 2 गलत हुए, 8 है। अब मेरा सिर्फ छोटा सा आइडिया, मेरे को 2 दिखा दो जो मेरे गलत हुए हैं, पता लग जाए मैंने कहाँ गलती करी है। वो तो ये नहीं, ये तो नहीं, बस हो गया, तो सबमिट हो गया कंप्यूटर में, साथ में उसने नंबर दिखा दिया। 10 में 10 थोड़ी है। अरे उसमें सबसे बड़ा आपको क्या है, मैंने वीजा दिया था उसको यूएसए कहना था, अब मेरे से जो क्वेश्चन टेस्ट में आए ना, वो अपने इंडियन के हिसाब से यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है, वहाँ राइट हैंड ड्राइव है, लेकिन वो मेरे को फिर भी इसके बाद दे रहा है, ठीक है यू कैन गो एंड ड्राइव।
हाँ ये क्या देखो सिस्टम जो अपना हाँ, आज की डेट में मेरे को उस कंट्री के लिए वो ऑथराइज कर रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड है क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे लेफ्ट हैंड साइड के इसके बाद चलो जी जाओ चला लो अभी उसमें कनाडा में गाड़ी है चलाना मतलब आप जहाँ आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कहीं ऐसी क्वेश्चनरी नहीं है कि वो राइट हैंड साइड ड्राइव के क्वेश्चन उनको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं। ठीक है यार चल रही है दुनिया आप जाके पंगा डाले आप ये देखो मेरे से वीजा कॉपी लेने का क्या पर्पस है एक बात अब यार ये तो देखो जिस कंट्री का मैं वीजा कॉपी आपको सबमिट कर रहा हूँ वहाँ के लिए मैं आपसे ऑथराइजेशन मांग रहा हूँ हाँ। वो राइट हैंड से ड्राइव की है या लेफ्ट हैंड ड्राइव के क्वेश्चन उसने question paper- कंट्री के लिए अलाउ कर लो जाओ जी चला उस कंट्री का क्वेश्चन पेपर नहीं होगा ना उसके पास। क्वेश्चन राइट हैंड से ड्राइव होना चाहिए ना नहीं होगा। क्योंकि मेरे को यू टर्न कहाँ लेना है ने इग्नोरेंस किया इसमें इग्नोरेंस हाँ इसमें मल्होत्रा यू आर राइट। ठीक है वही नहीं पड़ा जिसके जुम्मे लगा दिया भाई जज साहब ने देख लिया होना वहाँ की नहीं सर, आप एग्जाम इंडियन टेरिटरी में दे रहे हो ना कि यूएसए की, तो यहाँ के हिसाब से वो करेगा क्वेश्चन पुट तो। नहीं ऐसा थोड़ी सर। मतलब मेरे को अलाउ नहीं कर रहा कि आप यूएस में गाड़ी चलाओगे इंटरनेशनल लाइसेंस करके दे वो रहे तो आप वहाँ देगा ना, यहाँ तो यहाँ देगा, वो ठीक बात नहीं कर तो वो कैसे जज करेगा कि मैं आई कैन ड्राइव होते मैं राइट हैंड साइड में ड्राइव कर सकता सर तो वहाँ सर ऐसा ना गाड़ी भी वहाँ सर इंडियन एसोसिएशन के पास आपके पास उनके पास अथॉरिटी ना होगी कि दे कैन टेल यू कि यू कैन ड्राइव देयर नॉट। उन्होंने इधर की आपने देखा होगा नॉलेज कि इधर की है कि नहीं है, so they can at least tell us के हिसाब से क्वेश्चन नहीं है, इंडिया के हिसाब से वहाँ का लाइसेंस क्यों सर वहाँ के हिसाब से इंटरनेशनल लाइसेंस भी उनका अब ये भी नहीं पता कि इधर का तो उन्होंने ये लिया होगा कि इधर की नॉलेज है कि नहीं है, एटलीस्ट यू मेरा हाउ टू ड्राइव इन इंडिया। मैं तो उसी को इंटरनेशनल करा रहा हूँ 25 साल पहले 50 मैं तो ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी तो लगी हुई है साथ में। नहीं सर, उसी में करवा रहे हैं ना, उसको ये देखने रखना क्या इंडिया के इसको प्रॉपर नॉलेज है, ये भी लाइसेंस होल्डर नहीं उस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं ना। सुनो सुनो अगर ऐसा है सर, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इंटरनेशनल, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं भी है, विद इन 90 डेज ऑफ योर ट्रैवल और विजिट यू कैन ड्राइव इन एनी कंट्री। ओनली इंडियन लाइसेंस होती है। अच्छा फिर दूसरी कंट्री जो आप बता रहे हो ना जी ये वाला 60 डेज है और 2017 में आया है। मैं 2015 में लाइसेंस अप्लाई कर रहा था। 2017 के बाद आपको इंटरनेशनल नहीं कराना पड़ता। अगर आप किसी कंट्री में ट्रांसफर हो रहे हो और पीआर पे जा रहे हो या वैसे जा रहे हो तो 60 डेज वैलिड है आपका इंडियन लाइसेंस। जब से चिप वाले आए हैं 2017 के बाद, 2017 से पहले चिप वाले नहीं होते थे, उस टाइम आपको कराना होगा। आप ऐसे इंटरनेशनल स्कूल जा रहे हो। चलो सर ये वाला डिस्कशन बाद में कर लेते हैं। मेरा इसमें एक छोटा 2-3 पॉइंट है मैं जो क्विकली बताया था। इसमें मुझे ये भी लगता है, हालांकि ये सारी चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट अच्छा बोला कि भाई आपने फ्रेंच बैंक के साथ कोई एग्रीमेंट किया था कि कोई एक्सेप्टेंस का पहले नहीं किया और आप ये कंडीशन डाल रहे हो, तो अभी एक नई कंडीशन डाल रहे हो। उसमें कहीं हालांकि बैंक ने ये कोर्ट ने नहीं बोला, पर मेरे को जो समझ में आती है अपनी नॉलेज के हिसाब से कि ये शायद मल्होत्रा एक्सपोर्ट ने जानबूझ के किया था। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। अगर वो एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन देता इंडियन बैंक को भी और उसको भी, तो पता क्या होता, उसे ये चांसेस पूरे थे कि वो कोई एक्सेप्टेंस क्लॉज नहीं देगा। उस केस में क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट नहीं जाएंगे पार्टी के पास, डॉक्यूमेंट नहीं जाएंगे तो पेमेंट नहीं आएगी। समझे सर मेरी बात? सर एक बैंक का ये भी तो हो सकता है, मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट ले रहा है, हाँ। तो उसमें चेकलिस्ट लेता है। हाँ। चेकलिस्ट में वो चेक करना चाहिए कि मान लो इसमें जो कवरिंग लेटर इसने दिया है नहीं दिया है, हाँ वो भी जरूरी था। वो नहीं, पर कवरिंग लेटर में नहीं लिखा उसने। कवरिंग लेटर में ये नहीं लिखा कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं ये डॉक्यूमेंट पार्टी को रिलीज किए जाएं फ्रेंच बैंक से विद कोई एक्सेप्टेंस कंडीशन, वहां नहीं लिखा हुआ। अगर वो वहां लिखता तो क्या कहता, क्या होता, वो डॉक्यूमेंट एज इट इज वापस कर देता फ्रेंच बैंक कि भाई मैं क्यों मानूंगा तेरी कंडीशन, मैं नहीं मानता, मेरा कोई तेरे से एग्रीमेंट हुआ है, नहीं हुआ ना। इसका मतलब फ्रेंच बैंक चालू है, सिंपल सी नहीं चालू नहीं है भाई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा। आप तो एक तरह से एलसी खुलवा रहे हो ना उससे, आप तो एक तरह से एलसी खुलवा रहे हो, सर इसके अंदर यूसीबी तो आपका कोई एग्रीमेंट होना चाहिए ना उनके साथ। अदर क्लास भी तो होगा सर, अदर क्लास भी तो होगा यूसीबी में। नहीं, मैं कहता हूं ये हो सकता है कॉमन क्लॉज हो कोई एक्सेप्टेंस का, पर कोई ना कोई पहले से आपको अंडरस्टैंडिंग तो करनी पड़ेगी ना बैंक के साथ कि भाई हम डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, आपके पास ऐसा प्रोविजन है और क्या चार्जेस हैं आपके, कुछ तो करोगे आप। उसे पता था कि अगर मैं बहुत एक्सप्लिसिटली लिख दूँ तो एज इट इज ही वापस आ जाएंगे डॉक्यूमेंट, मेरी पेमेंट डिले हो जाएगी।
ऐसा तो सर जो एक्सपोर्टर है उसे तो हर बार डेंजर है ये चीज़ का, तो ये वाला जो क्लॉज है डीए तो है डेंजर। डीए में क्या है, डीए में तो आप 60 दिन का डीए है ना ये, तो यानी कि आपने लेटर ले लिया पार्टी से कि आप पेमेंट करोगे, पार्टी अच्छी भी है, पर 60 दिन में तो कुछ भी दुनिया इधर से हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर सर ये वाला क्लॉज में हाँ, इंसॉल्वेंट हो, हाँ ये इंटरनेशनल कंज्यूमर कोर्ट भी लायबल नहीं है आपको कहीं से भी वो पे करने के लिए। नहीं, अगर 60 डेज का नहीं, अगर 60 डेज का डीए है और विदिन उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ले लिया, वहां से अपना माल भी निकलवा लिया, लेकिन विदिन 60 डेज अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो आपको पैसा कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। तो मुझे नहीं, आप सही कर रहे हैं, मुझे क्या लगता है उसने तुक्का मारा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में डाल देता हूं, कुछ पंगा होगा तो मैं उसके बाद थोप दूंगा, किसी के पे थोपूंगा। उसने इंडियन बैंक को पकड़ लिया, उसको ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। उसे ये पता था कि पेमेंट तो देगा ये बंदा, जेन्युइन है, पर उसको ये नहीं मालूम था कि रेयरेस्ट रेयर केस में कंपनी बंद हो जाएगी। वो कंपनी बंद हो गई तो उसने कहीं छुपा एक बिल ऑफ एक्सचेंज में लाइन डाली होगी, उसका फायदा उठाने की कोशिश करी और फायदा उसको मिला भी। कंज्यूमर कोर्ट ने उसकी बात मान भी ली, राइट, अपनी जितनी नॉलेज थी जैसी भी थी। सुप्रीम कोर्ट को कुछ ज़्यादा थोड़ी नॉलेज होगी, उसके बाद एडवाइजर बेटर होंगे, इंटरनेशनल लॉयर ज़्यादा होंगे, तो उनको ये बात समझ में आई कि भाई बात तो सही है, पर इसने वहीं पे लिख के क्यों छोड़ दिया बात को। अगर इतनी स्ट्रांग बात, तो बहुत स्ट्रांग बात है कि आप एक बैंक को कह रहे हो जी आप को एक्सेप्ट करो तब रिलीज करोगे। नहीं सर, इसमें क्लॉज में है ये क्या? हाँ, वो लिखता है कि whereas DA is as I assume DA document against acceptance is an arrangement in which an exporter instruct a bank। तो हाँ, लिखना चाहिए उसको, हाँ, सुप्रीम कोर्ट instructed, हाँ, उसमें हाँ, क्लियर दिया है। हाँ, कहता है in which an exporter instruct a bank to hand over the shipping and title documents to an importer only if the importer accepts a accompanying bill of exchange or draft by signing। हाँ, 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 तो वो करेंगे उसको करना है अलग से लिखना। हाँ, उसको एक्सप्लिसिट जानबूझ के नहीं दिया। एक्सप्लिसिट देने में डॉक्यूमेंट वो एक्सेप्ट बैंक लेता ही नहीं है, वो एज इट इज वापस कर देता ठीक है, उसने लिखा हुआ है कि आपको है ना। देनी है। तो सुप्रीम कोर्ट को किसी ने इंटरनेशनल, इसके बाद ज्यादा बंदे होंगे जिन्होंने उनको एडवाइस दी, है ना, एक्सपर्ट ज्यादा होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की कंडीशंस बहुत आती हैं जब आप बिजनेस करने बैठते हो ना, तो आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है। सर पर फॉर द सेफ्टी ऑफ एक्सपोर्टर ये क्लॉज मैंडेटरी होना चाहिए, इसके रिलेटेड कोई हुआ है कुछ बात हुई है कि ये क्लॉज मैंडेटरी होना चाहिए कि इफ इन केस के कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। तो गवर्नमेंट ने डाला ना शनाइल दरी वाले केस में क्या करा है, डीए अलाउड ही नहीं है डीए, पॉलिसी कर दी कि अलाउड। काफी सारे जो रूरल आइटम है ना, जो हैंडमेड आइटम है, उन सब में डीए अलाउड ही नहीं है। वो सेफ साइड कर दिया ना, सेफ साइड कर दिया ना कि भाई, क्योंकि जो छोटा रूरल आदमी है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया, डीए अलाउड ही नहीं है, लिख दिया ना उसमें, पॉलिसी में लिखा हुआ है, साफ है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि डीए रिस्की है। तो उसको पता था डीए रिस्की है, उसने ऑर्डर डीए के बेसिस पे लिया, तो उसने रिस्क को कम करने के लिए उसने कहीं छिड़का दिया एक लाइन जानबूझ के मल्होत्रा एक्सपोर्ट ने, कि कुछ हुआ तो मैं किसी न किसी को फंसा लूंगा। एक्चुअली समझे आप मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट उसकी बातों में नहीं आया, बोला अच्छा तुम ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो। तो उसने अपनी दूसरी लैंग्वेज में बोला, ये नहीं बोला कि आप स्मार्ट बन रहे हो, पर उसने दूसरी लैंग्वेज में घुमा के, हाँ, और बैंक भी, इंडियन बैंक भी समझ गया कि इस बंदे ने गड़बड़ करी है ना। तो आप समझ रहे हो इस तरह की चीजें होती हैं जब आप, हाँ, जब प्रैक्टिकली करते हो आप। तो ये तो हमारी असेसमेंट है, हो सकता है जाने अनजाने में हो गया, मैं कह नहीं सकता ये बारे कि उसने सोचा भी बैंक का डॉक्यूमेंट है, बैंक के डॉक्यूमेंट में लिख रहा हूं तो यार हो गई वो। तो कई बातें हो सकती हैं इसमें, कई बातें हैं, पर कहने का मतलब क्या है कि इस तरह की जो केस स्टडीज हैं इससे आपको समझ में आता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि ये रेयर होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर शिपमेंट में ऐसा होता है, कंपनी डूबती नहीं है ऐसे, पर डूब भी जाती है। तो ये मेरा पर्पस था इस वाली केस स्टडीज को